Sachin Tendulkar, Lata Mangeshkar, all of these big people, everyone had 24 hours. And I feel like, yaar, I have 24 hours and I don't have control over anything. You have gone through all these things, struggles, mental challenges, a lot of things. So what do you want to suggest to someone? How can they take back control of their life? So when you feel lost, that means you don't have a goal. When you don't have a goal or an aim, there can be no direction. मुझे अगर पुणे जाना है तभी तो मैं गूगल मैप पर डालूंगा ना कि यार यहाँ से पुणे जाने का रास्ता बता. So if you're directionless right now, firstly you need to understand कि मुझे करना क्यों है. Because that will act as like a GPS and that will attract your actions automatically. तो पहले ये figure out करो कि साला मुझे ये करना क्यों है. Comes from you constantly being in that zone of pain. The point and the core problem of any human being who's trying to grow and he's not able to grow is because he never had an intention and awareness to know that he lacks it. अगर आप में awareness नहीं है कभी नहीं grow. But how much is the factor of success determined by hope and faith, and what is the difference between both? I always see successful लोगों के पास the magnanimous people, Sachin Tendulkar, Lata Mangeshkar, all of these big people, everyone had 24 hours. And I feel like, yaar, even I have 24 hours and I don't have control over anything in life. I feel like I had this much time, but I don't know. I don't have any direction. I feel like every time I try to focus on something, time just passes away. I feel like, how do I do it? I feel lost. Now, I want to take this question towards you because I feel you are the best person to respond to these things because you have gone through all these things, struggles, mental challenges, a lot of things. So what do you want to suggest to someone? How can they take back control of their life? Okay, so firstly we need to understand कि direction is proportional to your goal. Okay, so मैं इसको थोड़ा सा explain करता हूँ. When we talk about कि हम लता मंगेशकर, आज के ज़माने में विराट कोहली, ऐसे कोई भी लोग हैं, ठीक है, they want to take back control of their time. Okay, why? Is a very important question to ask. मेरे को मेरा दिन वापस चाहिए, ठीक है, मेरे को मेरा दिन वापस चाहिए. क्यों चाहिए? Because the problem is, पहले क्यों का आंसर आना चाहिए, then you can know how to do it. So if let's take example of विराट कोहली. अगर हम विराट कोहली का ये था कि यार मैं बहुत अनफिट हूँ, इस टाइम पे मेरी सांस फूल रही है, आई वॉन्ट टू बिकम ब्लडी बेस्ट क्रिकेटर एवर एग्जिस्टेड, इस पे मैं अपना टाइम चैनल करूँगा टू यूज दैट 24 hours विद वन फोकस दैट आई विल बिकम द बेस्ट एथलीट एंड देन द बेस्ट क्रिकेटर एवर. राइट? So when you feel lost, that means you don't have a goal. When you don't have a goal or an aim, there can be no direction. मुझे अगर पुणे जाना है तभी तो मैं गूगल मैप पर डालूंगा ना कि यार यहाँ से पुणे जाने का रास्ता बता. Right? So if you are directionless right now, firstly you need to understand कि मुझे करना क्यों है. Because that will act as like a GPS and that will attract your actions automatically. So पहले ये figure out करो कि साला मुझे ये करना क्यों है. Let's say I have a desire in my mind. So I'm not saying कि I have a very crystal clear goal. I have a desire. Maybe मैंने कहीं पे scroll किया है, कहीं पे मेरे mind में बैठा है कि because of this I can be successful. If I have this much of amount of money, I would be living this life. Maybe वो desire है. I don't know कि वो crystal clear goal के इसमें convert होता है, नहीं होता है. But I have this desire. Now, how do I take back control to divert my whole energy, my efforts to this? Because all of my life, I've felt कि I know this, I want to go there, but distractions are too hard to conquer. Okay, so very interesting take. Let's take example of a very particular target audience. Let's take the bracket of 20s to 25. जहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा लॉस्ट होता है. देन 25 to 30 यहाँ पे आपको क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होती है. ठीक है, इस 10 साल को ही हम कंसिडर करते हैं अभी तक के लिए. ठीक है. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कि नीरज मेरे पास एक डिज़ायर है बट I feel so much distracted.
तो इसके लिए मेरे पास एक आंसर है इन टर्म्स ऑफ कोड दैट थिंक इन लॉन्ग टर्म, एग्जीक्यूट इन शॉर्ट टर्म. ठीक है, सो आई विल ब्रेक इट डाउन. फॉर एग्जाम्पल 20s में आपका एक सिंपल सा डिज़ायर हो सकता है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. मुझे अपना खर्चा अपनी पॉकेट मनी से नहीं निकालना, मुझे खुद के उससे निकालना है. आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक गोल. ठीक है, जो कि हर 20 साल के लड़के का होगा, कि चाहे उसको अपनी गेम खेलनी है, चाहे उसको कुछ और करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ ला के देना है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड बट अ वेरी प्रैक्टिकल वन. परफेक्ट. ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं. अब मेरे को पता चल गया कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या होना है. लॉन्ग टर्म में क्या पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, 1 से 2 साल लेते हैं. ठीक है, मेरे लिए 20 साल के लड़के के लिए वो लॉन्ग टर्म ही है. ट्रू. तो 2 साल का मैंने पीरियड ले लिया, 1 से 2 साल का. मुझे इंडिपेंडेंट होना है. ठीक है, मेरे को पता चल गया मुझे कहाँ जाना है, डायरेक्शन दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट. एक बार मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मुझे कहाँ जाना है. अब मेरे को ये देखना है कि इंडिपेंडेंट तो मुझे बनना है. दैट मीन्स आई हैव टू ट्रेड सम सर्विसेज टू गेट सम मनी. अब मैं देखूंगा कि मुझे क्या आता है करंटली, जिसमें मुझे सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगे सीखने में. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट मैं कब होता हूँ, व्हेन आई ट्राई टू डू समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू मी, both physically and psychologically. Okay. Right? So if let's suppose say I am somebody who loves gaming, like यहाँ पे साहिल को पसंद है. ठीक है, so I will try to probably find things where I can align my interest in that industry. Like gaming के भी paparazzi होते हैं. I recently met a studio owner in Delhi. वो 3 भाई चलाते हैं. Right? They've been consistently earning 2 to 2.5 lakh from YouTube just by covering gaming events. They don't do anything else. Oh. And they have like brand deals from IQ and stuff like that. Now the interesting part is कि वो PUBG खेलते थे, उनका इंटरेस्ट था, उनको इंडिपेंडेंट बनना था. उनका वेरी केस स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ. उनको था कि हमें अपना खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करना है, उसके लिए फंडिंग चाहिए, पेरेंट्स के थ्रू इंडिपेंडेंट हो जाना है. 3 भाई हैं, सगे भाई हैं. तीनों को इंटरेस्ट था गेमिंग में. तीनों ने इवेंट कवर करना स्टार्ट किया, तीनों ने गेम खेलना स्टार्ट किया. एंड देन दे स्टार्टेड जस्ट मेकिंग गेमिंग न्यूज़, जैसे नॉर्मल मीडिया न्यूज़ चैनल होता है. अब नीश को क्लियर कर दिया कि हमें तो सिर्फ गेमिंग का पता है, तो हम गेमिंग न्यूज़ करेंगे सिर्फ. Now they get a lot of views because they keep on covering as soon as कोई भी इवेंट हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, किसी कंपनी का स्पॉन्सर्ड है, वो सबसे पहले पहुंच जाता है. यू गेट इट. नाउ दैट इज़ अ वेरी ईजी वे ऑफ. देन उनको पहली बार 13,000 का चेक आया, 15,000 का चेक आया, बढ़ते बढ़ते 1 लाख हुआ, व्यूज़ बढ़ने लगे. राइट, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर मोर देन 5 years नाउ, एंड नाउ दे हैव देयर ओन स्टूडियो. अब लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिपेंडेंट हो के मैं स्टूडियो खड़ा कर लूंगा, पता नहीं है मुझे. यू कैन डू एनीथिंग विद दैट मनी. बट उनके लिए क्या था, इंडिपेंडेंट होना है. उन्होंने क्या किया, जो इंटरेस्ट मेरा अलाइन हो रहा है उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए. Okay. द रीजन यू आर प्रोबेबली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इज बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी हार्ड फॉर यू. ओके, तो मुझे ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि मेरा जो भी गोल है, पहला स्टेप 1 हो जाएगा मेरा कि मेरे को डायरेक्शन फिगर आउट करना है कि जाना कहाँ है. ठीक है, दूसरा मेरा ये गोल हो जाएगा कि अच्छा मेरे को यहाँ जाना है, पता चल गया. अब यहाँ जाने के लिए मेरा लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ कौन सा होगा. Okay. क्योंकि उस लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करूंगा. जिसको मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करूंगा उससे डिस्ट्रैक्ट होने के मेरे चांसेस बहुत कम है. इफ़ आई लव वर्किंग आउट, मैं जिम में जाकर डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूंगा. आई वुड बी फोकस इन बी वेरी माइंडफुल अबाउट माई वर्कआउट, एंड प्रोबेबली दैट विल हेल्प मी परफॉर्म इवन बेटर in my different activities. Okay. So does that answer your question? मतलब it's very simple. Step 1, get the direction. Step 2, try to figure out a least resistance का path. Step 3 is basically if you even in this path feel distracted या आपको लग रहा है, तो step 3 में आपका ये आता है, जैसे मैं off the record भी बता रहा था श्रीकांत को कि have 3 checkpoints. Okay. Initially, if it is very difficult for you to start with a day, have 3 checkpoints in a week. Am I getting closer to what my intention was? In this case, इस लड़के का था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है. तो क्या मैंने कुछ भी अर्न करना स्टार्ट किया, या मेरी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया, या मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मैं फ्रीलांसिंग के लिए कोई कैनवा सीख रहा हूँ. Am I doing anything closely helping me get closer and closer to this goal? You mean हफ्ते to में say 3 बार चेक करूंगा हफ्ते में. I'll be asking that to myself. ठीक है, एंड यू कैन मेंटेन अ जर्नल अबाउट इट कि मैंने क्या एक्शन लिए, बिकॉज देन इट विल ऑलवेज बी देयर इन योर सबकॉन्शियस कि मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा तो मेरे को ऑड लगेगा. Okay. यू सी, व्हेन यू डोंट ट्रैक यू डोंट प्रोग्रेस. इट इज एज सिंपल एज दैट. पहले ही आपको हफ्ते में करना है, फिर ये आपको दिन में 3 बार करना है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू जस्ट लिव योर लाइफ ऑन ऑटो पायलट. राइट, यू आर नॉट द डायरेक्टर ऑफ योर ओन मूवी. somebody else is directing. कोई घर पे आ गया, उसने बोल दिया आज चलो आज जूह चौपाटी जाते हैं, तो सब चले गए. बट इज इट अलाइनिंग विद योर वीकली गोल और योर डेली गोल और योर मंथली गोल? प्रॉब्लम इज दैट पीपल डोंट इवन हैव वीकली और मंथली और एनी चेक पॉइंट्स.
Not even daily. नॉट इवन डेली. Yeah. तो डेली तो बहुत ही Niche down. डिफिकल्ट हो गया. मंथली रखो, वीकली रखो, एंड देन स्लोली 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 स्लोली. सी द पॉइंट इज अवेयरनेस के लेवल्स होते हैं. आप स्टार्टिंग के अंदर थोड़े बनोगे, फिर और बनोगे, फिर और बनोगे. डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ. जस्ट स्टार्ट बीइंग अवेयर एटलीस्ट इन दैट मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप. But when I find out कि I want to take these steps, there is no one to hold me accountable if I don't take these steps. What do you think I should do? Because I felt कि I write these things down and I then simply skip those pages, or I don't even open that book because I know that I haven't ticked that one. सो मैं 2 इसमें सोल्यूशन दे सकता हूँ. फर्स्टली, प्लेजर एंड पेन का ना एक रेशियो होना ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर. सो वी ऑल नो कि हमें सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है, जिस चीज़ से हमें एक्चुअली में पिंच होगा. राइट. सो व्हेन यू दिस होल पॉडकास्ट दैट वी आर डूइंग इज़ फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू डू समथिंग. जिनको फ़र्क नहीं पड़ना, उनको कभी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. बट द पीपल हु एक्चुअली वांट टू डू समथिंग, लेट्स टेक अ जिम एग्जाम्पल. मुझे पता है कि मैं अगर ये बॉडी वेट को लूज़ करना चाहता हूँ, मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है. ठीक है. मैंने अगर लेट्स सपोज से कि मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा कि ठीक है, महीने में मैंने 1 स्कूप आइसक्रीम खा ली मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, कि ठीक है मैंने खा ली. आई वुड गो विद द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जिससे मेरी लीस्ट डैमेज हो. लेट्स सपोज से प्रोग्रेस. ठीक है. मेंटली वो मुझे बेनिफिट दे रहा है. मैंने रिवॉर्ड दिया खुद को मेहनत करने का, डिलेड ग्रेटिफिकेशन. सिमिलरली, इफ आई ब्रेक दैट, लेट्स सपोज से आई हैव पिज़्ज़ाज एवरी 2 days 3 days, राइट. अब मैं अपने आप को पनिश करूंगा इस वे में कि यार अब तूने एक्स्ट्रा फीड कर लिया. ठीक है. यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू योर गोल. ठीक है. देन आई विल गो ऑन अ वाटर फास्ट और समथिंग विच विल मेक मी रिमेंबर कि यार अब तूने ये किया है ना, तो तुझे बैलेंस करना पड़ेगा. तो द लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस. यू कैन गो रॉन्ग एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी की गारंटी नहीं होती है. एक नेवी का या डिफेंस का बंदा भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं जाके हम उनका डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देते हैं. बट देर आर पॉइंट्स वेयर दे हैव द स्लिपेजेस एज वेल, but they keep themselves accountable because the goal is worthy enough. So it all boils down to कि मैंने जो भी टॉपिक चूज किया है, जिसके लिए भी मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मैटर करता है. हाँ, अगर तुम्हें वो किसी की कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ थी, किसी को कुछ गिफ्ट देना था, उसके लिए तुम कर रहे हो, तुम छोड़ दोगे. ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, गिफ्ट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द स्टेप 1 दैट वी डिसाइडेड हियर, जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ, मेरे लिए उसकी वैल्यू क्या है. अगर वो वैल्यूबल नहीं है, then I'm sorry to say you won't take the sacrifices. अगर वो वैल्यूबल है तो तुम करोगे. अगर मैं किसी को बोल देता हूँ यार, यू नो वो बसंती नाच वाला सीन जो गब्बर मूवी में फेमस हुआ था कि यार जब तक तू नाचेगी तब तक इसकी जान है, नहीं तो मैं उसको गोली मार दूंगा. धर्मेंद्र पाजी वाला जो सीन पैदा हुआ था, फिर बोलता है कुत्तों के सामने मत नाचना. तो द पॉइंट इज कि जब आपको कोई गन पॉइंट पे रखता है ना, आपके फैमिली मेम्बर को, कुछ ऐसी चीज़ को, तो आप ओलंपिक रनर को भी हराओगे क्योंकि आपको बचाना है. The goal is valuable enough. The reward is valuable enough. So it is all about reward selection. If it is not, you will be distracted. You know what that tells me कि the all kind of propaganda around that you can achieve anything without sacrifice anything. So that is absolutely wrong, right? You have to sacrifice something to achieve something in your life. You have to, but you choose your own sacrifices. किसी के लिए नेटफ्लिक्स एक सैक्रिफाइस है, किसी के लिए नहीं है. किसी के लिए एक बार खाना स्किप करना एक सैक्रिफाइस है, किसी के लिए नहीं है. बोलते हैं ना, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. आज हम वो स्टार किड्स वाली लैंग्वेज में बोलते हैं मेरा स्ट्रगल अलग है. हर एक की स्ट्रगल की डेफिनेशन अलग है. बट आई डू डेफिनेटली बिलीव दैट यू हैव टू चूज अ पाथ विच विल बी कॉन्स्टेंटली डिफिकल्ट फॉर यू. मैं इसका रीज़न बताता हूँ. इट इज़ नॉट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप सैक्रिफाइस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. सिंपल सी बात है, आप जब ग्रो करते हो, growth comes from you constantly being in that zone of pain. Okay. समझ रहे हैं मेरी बात. अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो उस पॉइंट पे तो मैं अपने बॉडी को पेन ही दे रहा हूँ ना. ग्रोथ तो उसका आउटकम है. तो जब मैं सैक्रिफाइस की बात कर रहा हूँ तो मुझे सैक्रिफाइस को एज वो हम यज्ञ के अंदर घी डालते हैं उसकी तरह नहीं देखना है. इट इज़ अ जोन. इट इज़ अ जोन. उस जोन के अंदर जब तक मैं रहूंगा कॉन्स्टेंटली, आप बोलते हैं ना हम कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाली बात है,
जब तक मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से लगातार बाहर रखूंगा तब तक मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ मी प्रोग्रेसिंग एज एन इंडिविजुअल, राइट? एज सुन एज आई फील लाइक आई एम इन दैट कंफर्ट जोन, कोई भी चीज़ मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं है, ठीक है? दैट इज जस्ट अ सिग्निफिकेटर कि आप अपने आप को पुश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समझ रहे? अभी अगर मैं लेट्स से मैं एक वर्कआउट प्लान पे हूँ, मैं अपनी बेस्ट फिजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सो मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं हर मंडे को वाटर फास्ट करूँगा. दिस इज नॉट समथिंग आई यूज्ड टू डू एन ईयर अगो, बट नाउ इट इज़ वेरी नेचुरल टू मी. उस टाइम पे मेरे लिए वो बहुत पेनफुल था, डिफिकल्ट था, बट इट हैज़ टेकन प्रैक्टिस, राइट? पर अब ये मेरा कंफर्ट जोन हो गया. नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं महीने में एक हफ्ता, लाइक आई एम ट्राइंग दिस 5 days, जैसे मैं हफ्ते में एक दिन करता हूँ वैसे मैं महीने में एक हफ्ता करूंगा वाटर फास्ट. ओके. आई विल जस्ट बी ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ यू सी दिस कि मेरा जोन बढ़ते जा रहा है, ब्रॉडर होते जा रहा है, बट अगर मैं उस जोन को छोड़ दूँ then I'll always be on that one goal. So you slowly and steadily Exactly. starts understood Progressing. और हमें कभी भी ये चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए. अब जैसे हो सकता है कि अगर नेटफ्लिक्स मुझे ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, लेट्स सपोज से कि मुझे मैं उस पर डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ जो मेरे को इंस्पायर कर रही हैं या जो मेरे को इनपुट्स दे रही हैं कि मैं कैसे कर पाऊँ. अब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई लव टू वॉच ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है? दोज आर माई फेवरेट काइंड्स ऑफ. अभी हैंड्स डाउन भाग मिल्खा भाग इज माई दी बेस्ट मूवी दैट आई वॉच्ड इन माई लाइफ. तो मैं उसको रिविजिट कर लेता हूँ हर 1-2 साल के अंदर. मेरे को तो वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम लगता है, किसी को लगेगा अरे ये बैठ के मूवी देख रहा है. अब मेरे को मालूम है यार मेरे लिए वो बंदा लेजेंड है, मेरे को इतना कुछ सीखने मिलता है हर बार जब मैं मूवी देखता हूँ. क्योंकि वो वही बात है ना कि भगवत गीता को आप एक बार पढ़ो, आप जिंदगी भर पढ़ सकते हो. कोई बोलेगा मैंने 2 घंटे में पढ़ लिया उसका PDF, कोई बोलेगा कि मैं पूरी जिंदगी लगा चुका हूँ इस पर, अब जाके मैं इसको थोड़ा सार समझ पा रहा हूँ इसका. You need to keep revisiting it. Yeah, you need to keep revisiting because you are getting matured. समझ रहे हैं इस बात को? तो it is as simple as that. Don't define your sacrifice. That is my line. Define your sacrifice. Should be on your own terms. किसी ने बोल दिया Netflix देखना sacrifice, मैंने भी start कर दिया कि मैं Netflix नहीं देखूंगा. But are you taking action towards what you wanted? Right. It is not your sacrifice. If nothing changes, nothing changes. If nothing changes, nothing changes. So if I expect कि मेरा daily lifestyle वैसे का वैसे है and then I dream of achieving these things. Correct. तो हो ही नहीं सकता. So now we established कि comfort zone से बाहर तो आना है. 100%. Being comfortable in uncomfortable situations is very important. Then second cheese is sacrifice. Now the thing that I usually struggle with is if I set a goal, I struggle to break it down. I start taking on big things at a time and eventually I lose the motivation. मे बी आई डोंट नो कि इसको कैसे ब्रेक करना है जहाँ पे मैं पहुँच के खुद को फील करूँ कि या आई हैव रीच टू दिस माइलस्टोन. आई वांट टू अंडरस्टैंड ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ डू आई स्ट्रक्चर माई डे एंड एवरी डे आई फील लाइक आई हैव वॉन दिस डे. आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक कि आई हैव वॉन दिस वीक. मे बी दैट could convert into something bigger. See, the most unsuccessful people are the ones who have lived one day for their entire lifetime. Okay. Life is a lesson only for the people who can learn from it. ठीक है? So, and that is a very big statement. समझ रहा है? So, the question that you are asking me is how do I break down the goals into smaller things and that is the thing that you're asking, right? कि मैं in a way I feel like कि in this world of instant gratification I feel कि if I do this I get some results and then that circuit neurons fires and you keep doing those things. So I'll give a good analogy for this. So for example, बच्चा जब पैदा होता है ना उसको पता नहीं होता मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट करता है. ठीक है? तो हम उसको एक let's talk about Instagram, social media or anything as a trigger for your dopamine. Right? Brain is biological. उसके लिए डोपामिन है, कहीं से भी आ रहा है. चाहे आप वो आज के ज़माने में होता है ना कि वेपिंग इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डोपामिन हिट यू कैन गेट, क्योंकि एवरी सेकंड हो रहा है. यू शुड अवॉइड इट. ऐसा नहीं कि सिगरेट से कम टॉक्सिक है वो. इट इज़ मोर टॉक्सिक बिकॉज यू आर पफिंग मोर. राइट? अब जो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब कोई भी चीज़ आप करते हो वो आपको एक ट्रिगर देगी, आपके ब्रेन को बोलेगी कि देख बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है. डोपामिन वो चीज़ है. अब या तो आप इसको गंदी आदत से कर सकते हो, बैड हैबिट से कर सकते हो. इट कैन बी पॉर्न, इट कैन बी एनीथिंग विच विल रिलीज द सेम हार्मोन. राइट? अब
the funny and the interesting part is that you can control with which you want to trigger this hormone. ठीक है? There is something called as hyperfocus state. Okay. How do you achieve it? It is basically when you try to have small task. Let's suppose I want to get into hyperfocus. ठीक है, मेरा कोई भी बड़ा सा गोल हो, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे छोटे से 3-4 टास्क रखूँगा अपने पास में, जिसको लेट्स सपोज से मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. उनका डिफिकल्टी रेशियो होगा कि मैं 70% उनको आराम से कर सकता हूँ, 30% डिफिकल्ट है सिर्फ. Okay. मैंने ये 2-3 टास्क किए जो कि 2-3-5 मिनट में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, स्मॉल. Okay. So once I do this small 2, 3, 4, 5 task, it is still a dopamine hit for my brain. Understood. ठीक है, अब ये एक प्लेग्राउंड बन गया उसके लिए. जैसे ही मैंने ये 2-3 टास्क को फायर किया, मेरे न्यूरॉन्स फायर हुए, उसने डोपामिन रिलीज किया, मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मैं बड़े टास्क के लिए तैयार हूँ. राइट. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल. पहले अगर 10 थी, 20, 30, 40, 50, 60, 70. सो मुझे कभी भी हिट नहीं लग रही है. एंड नाउ आई गेट इनटू दिस हाइपर फोकस जोन. हाइपर फोकस इज बेसिकली यू बीइंग द पायलट ऑफ योर डे. तो जैसे मैंने पहले डिफाइन किया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑटो पायलट मोड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पायलट मोड. पायलट मोड में ये होता है कि आपके पास कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर अवेयरनेस एंड योर एक्शंस होता है, विच इज़ वॉट यू नीड. सो फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं और ब्रेक डाउन करूँ, आप 24 घंटे हैं आपके पास में. 24 घंटे में से लेट्स सपोज से मेरी मेन डिफिकल्टी ये है कि मैं एक तो स्लो काम करता हूँ, तो मेरे को काम करने में लेट्स सपोज से 12 घंटे लगते हैं. उन 12 घंटे के अंदर मेरा डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस पूरे 12 घंटे का है. ठीक है, पूरे 12 घंटे में डिस्ट्रैक्ट, कुछ भी आके मेरे को कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. अब मैं इसको 2 तरीके से टैकल कर सकता हूँ. एक कि मैं तो एक तो मैं हाइपर फोकस में जाके इस पूरे टाइम को ही रिड्यूस कर दूँ कि मैं जो काम 12 घंटे में कर रहा था, अब वो मैं सिर्फ 4 घंटे के स्लॉट में करूँगा. मैं अपने ब्रेन को समझाऊंगा कि देख यार, ये से लेके ये टाइम मेरा हाइपर फोकस का टाइम है, इसके अंदर मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है. Okay, what do you mean by that? मतलब you keep all the cell phones away. Yes. So you cannot avoid distraction when it arrives. You have to avoid it before it arrives. Okay. ठीक है. सो आई हैव टू ट्रीट माई सेल्फ कि मैं एक एनवायरमेंट में जा रहा हूँ. जैसे यहाँ पे आया, हम पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठे हुए, तो हमें पता है यहाँ पे पॉडकास्ट होगा, ब्रेन को पता है पॉडकास्ट होगा यहाँ पे. ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे. मंदिर में गए, हम मंदिर में पूजा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. वैसे ही मेरा एक वर्क जोन है. मैं वहाँ पे गया, उस टेबल पे बैठा, उस चेयर पे बैठा, मैंने वो कॉफी का मग लिया, मेरी बॉडी को रियलाइज हो गया नीरज हाइपर फोकस मोड के लिए आ गया, बिकॉज दैट्स द ट्रिगर दैट यू आर गिविंग टू योर ब्रेन. नाउ आई विल डू माई स्मॉल टास्क. हाँ, ये टास्क लिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, तो मेरा डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस मैं कम करते जा रहा हूँ और मेरे फोकस होने के चांसेस मैं बढ़ाते जा रहा हूँ. देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. पहली बात, जो 12 घंटे का काम था वो मैंने स्लॉट इन करके 4 घंटे में कर दिया. अब 4 घंटे के बाद अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो भी जाता हूँ, आई स्टिल कंप्लीटेड द वर्क दैट आई वांटेड टू डू. राइट. और जब मैं उसके बाद में डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो मेरे को कोई गिल्ट नहीं होगा. यू अंडरस्टैंड. एंड देन एक्चुअली आई कैन वर्क ऑन माई पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल, कि मैं प्ले कर सकता हूँ, मैं जिम जा सकता हूँ, मैं बहुत सारी और चीज़ें कर सकता हूँ. बिल्कुल. राइट. सो दैट इज द रीजन आई हैव डिवाइडेड माई डे इनटू, लेट्स सपोज से execute the first half of the day, ठीक है, then learn the second half of the day, and then reflect on the third half of the day. So you keep execute on the first half of the day. Yes, because क्या होता है, when you execute something, when you wake up in the morning, your brain is the freshest. ठीक है. So when you execute, it gives you the motivation कि you have conquered something in your life that day. It gives you innate confidence. Okay. True. चाहे वो मेरे छोटे से छोटे टास्क क्यों ना हो. अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यार, मैं सुबह उठ के मैं सुबह का नाश्ता ही मेरा जो 10 बजे होने वाला था, वो लेट्स सपोज से होता है 3 बजे. तो मेरे पूरे बॉडी को सिग्नल जाता है कि अरे यार कुछ किया ही नहीं यार, मैं इतना लेट हो गया. जो फर्स्ट काम करना चाहिए तो फर्स्ट. हाँ. तो अब वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो क्या हो जाता है उससे कि मेरी बॉडी को सिग्नल जाता है नीरज वी आर ऑन टाइम, वी आर एक्चुअली मैनेजिंग टाइम सुपरबली. ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. समझ रहे हो. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब मैं फर्स्ट हाफ में एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मेरे से गलती होती भी है तो मुझे पता है मेरे पास पूरा दिन बचा है उस गलती को सुधारने के लिए. राइट. इफ आई एग्जीक्यूट इट इन द लेटर हाफ ऑफ द डे, मेरे को पता है दिन तो खत्म हो गया. एंड यू नो व्हाट, वो इट कीप्स रिमाइंडिंग अस इन द सबकॉन्शियस कि ये बाकी बचा है. एंड इट इज लाइक अ वेट दैट यू आर ड्रैगिंग. बोलते ना पानी का ग्लास हेवीएस्ट कब होता है, ऐसे हेवीएस्ट नहीं होगा, इसको पकड़ के रखो 24 घंटे, 24th hour दैट विल बी द हेवीएस्ट ना. सो यू नीड टू कीप योर माइंड डीक्लटर्ड जितना हो सके. इंटरेस्टिंग. सो आई विल ब्रेक इट थोड़ा सा ना, इसको और स्ट्रीमलाइन करके ब्रेक करता हूँ मैं. लेट्स गो हाउ अ डे शुड लुक लाइक, ताकि समझ में आए कि डिस्ट्रैक्शन. हाँ, कि डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज द बायोलॉजी इज वेरी इंट्रिकेटली कनेक्टेड टू दिस. फर्स्टली, यू शुड स्टार्ट मेंटेनिंग अ टास्क लिस्ट.
for yourself. Highly That I will recommend. do previous night. Previous night. Previous night में when you do it is when you go out for a walk. Okay. When you are not stimulated by anything. Because then your mind can speak to you. Right? तो मैं वो तब करूँगा. Ideally, I prefer people writing things down in the task list in the night. Because then it goes to your subconscious. And your mind starts planning the next day. तो उठोगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज आते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. यू आर फीडिंग योर ब्रेन. Right. ठीक है, पहली तो ये चीज़ हो गई. दूसरी, व्हेन यू वेक अप डोंट इमीडिएटली हैव योर ब्रेकफास्ट. लोगों को पहले उठते ही होता है कि मेरे को कुछ खाने को दो. Don't, because then you are putting a burden on your body to process the food first and then to figure out the day. तो you don't need a breakfast as soon as you wake up. कोई ज़रूरत नहीं है. जितना हम इंडियंस खाते हैं दाल चावल रोटी ये सब रात में, कोई ज़रूरत नहीं है सुबह उठ के आपको मतलब. And breakfast maybe when you want to eat something, try to have protein and fiber. If somebody eats non-veg, आप eggs खा सकते हो. If somebody eat veg, you can start with a meal of like high protein muesli or something like that, because it's easy on your gut and would not bloat you down process करने में. वरना आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है. Avoid carbs. I avoid carbs in the first half of the day. बिल्कुल avoid करो क्योंकि आपका brain foggy हो जाता है. So you prepared yourself biologically now. बायोलॉजिकली प्रिपेयर मैंने कर दिया कि मेरे को नींद ही ना आए. क्योंकि लोगों को क्या होता है नाश्ता खाता है, अरे यार नींद आ रही है, चावल खा अरे मस्त बिरयानी खा के सोने का मन कर रहा है, तो सो ही जाओगे. आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होना ही है आपको. You get it? So what I will do is I will wake up, I will plan. Firstly, I will avoid eating any solids immediately 2 hours to my waking up. I will just have waters. जो इंसान सुबह उठ के पानी पी लेगा, इलेक्ट्रोलाइट पी लेगा या कुछ भी ऐसा पी लेगा, उसको भूख नहीं लगती है. Drink a liter of water, you will not feel hungry for at least 3-4 hours. Right. ठीक है, क्योंकि body gets dehydrated in the night. Hydrate it. पानी पीते रहो. उसके बाद में immediately go into execution mode. जो मैंने रात को डिसाइड किया था, आइडियाज़ आ चुके हैं, इसमें से मैं फटाक से 2-3 टास्क निकालूंगा जो मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है. Okay. एंड देन आई विल शट ऑफ माई कम्युनिकेशन. ठीक है, देन आई विल गो इनटू, और जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, छोटे छोटे टास्क कर रहा हूँ कम्युनिकेट करने के, मैं स्मॉल टास्क वाला अपना टिक मार्क भी कर रहा हूँ मेरे ब्रेन के लिए कि नीरज ने इसको ये करना था बोल दिया, इसको ये करना था बोल दिया, उसको एक वॉइस नोट डालना था कर दिया. ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं. नाउ आई एम स्ट्रीमलाइंड, आई डोंट हैव टू, एंड दैट देयर इज नो डिले देयर. So you start with the easiest task. Yes. Okay. Ideally something which will require less than 2 to 5 minutes. उससे ऊपर नहीं होना चाहिए वो टास्क. Then it's a big task. Because I don't want to. So basically the point is not just saving your time. The point is also to save your energy. मेरे को अपनी mental energy save करनी है. ये होने के बाद I will go into the meat of the task, because now I am into defocus. अब defocus भी increase होता जाता है. 25 मिनट्स अगर किसी को पोमोडोरो फॉलो करना है, इतना इनिशियली आप 4 घंटे एक साथ नहीं बैठ पाओगे. सो ट्राई टू हैव स्मॉलर गोल्स. 1 आवर का डीप फोकस, 1.5 आवर का डीप फोकस, 2 आवर का डीप फोकस. 4 घंटा नहीं होता है इमीडिएटली. ठीक है, इट टेक्स प्रैक्टिस. व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डीप फोकस, ट्राई टू फिगर आउट द एनवायरमेंटल क्यूज दैट यू नीड टू सस्टेन इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करता रहता है बार बार, तो मैं नीचे जाऊँगा, ब्रेक हो जाएगा. क्या आई एम मूविंग अराउंड. फ़ोन को DND पे डाल दो, कॉल आएगा, ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज मैं बात करने लग जाऊंगा. ट्राई टू हैव वॉट एवर यू नीड एट द प्लेस यू आर. उससे क्या होगा कि यू डोंट नीड टू मूव अराउंड. तो वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया. एंड इससे क्या हो जाएगा, व्हेन यू स्टार्ट द मीट ऑफ द टास्क. अब इसमें तीसरी चीज़ ये ऐड कर लो, स्टार्ट विद सम लाइट म्यूजिक. लाइक मेरे को लाइट म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा फोकस मिलता है, बिकॉज आई नो एज लॉन्ग एज द म्यूजिक इज प्लेइंग आई एम इन द फोकस मोड. ट्रू. तो मैं म्यूजिक स्टार्ट करके मैं अपने काम में लग जाता हूँ. अब किसी के लिए वो हो सकता है ओपेरा म्यूजिक, किसी के लिए हो सकता है वो भक्ति गीत, किसी कुछ भी हो सकता है. देयर इज नो वन सॉल्यूशन फॉर ऑल. बट आई हैव सीन म्यूजिक हैज दैट इफेक्ट. यस 100%. मैं पढ़ाई भी करता था बचपन में म्यूजिक के साथ में. लोग बोलते थे नीरज एग्जाम के अंदर फुल गाने लगा के पढ़ रहा है. द बेनिफिट ऑफ दैट वाज कि कोई मेरे को डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता था. ट्रू. हेडफोन में मैं ऑलरेडी गाने लगा के सुन रहा हूँ. तो जस्ट डू दिस, एंड यही को आप रिलेंटलेसली जब प्रैक्टिस करोगे ना, व्हाट विल स्लोली हैपन श्रीकांत इज दैट यू विल स्टार्ट टू हैव अ वेरी इंटेंशनल लाइफ. क्योंकि आपको पता है आपके दिन में आप उससे क्या चाहते हो और क्या हो रहा है. समझ रहे हो, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, क्या हो रहा है. 2 डिफरेंट आउटकम्स. अब वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि मैंने कितने एक्शंस लिए उन दोनों के बीच में उसको क्लोज लाने के लिए. अब जब मैं ये सारी चीज़ें करूँगा और मैं इसको कंसेक्यूटिवली करूँगा, व्हाट आई विल सी इज दैट
द थिंग्स दैट आई एनविजन, लेट्स सपोज से कि मैंने जॉब क्विट करके सोचा था कभी कंपनी खड़ी करूंगा, या जॉब क्विट करके सोचा था कभी पॉडकास्ट खड़ा करूंगा, या जॉब क्विट करके सोचा था कभी किसी को एम्प्लॉय करूंगा. These were just ideas in my head. Right now they are realities. Right? So I feel anybody can achieve what they want in 3 to 5 years of time if they can be consistent enough for that 3 to 5 years. So they don't need to do 4 hours every day. If they can just show up for, let's suppose 30 minutes also every day for that 4 hours, they will beat any person who is, let's say, doing it for 4 hours a month and then leaving it. And do you think in this generation it is, I guess 30 minutes or 1 hour hyper focus is also enough to beat this competition? Do you think that? Yeah, I think it has been never easier to become a super employee or achieve something in life than this generation. Because everybody is distracted. Yes, because everybody wants you to be distracted. See, marketing, social media, everybody is Gary Vee बोलता है, attention is the current currency. True. ठीक है, हर बंदे को आपकी अटेंशन चाहिए. व्यूज से मैटर क्यों करता है? सब लोग व्यूज के लिए क्यों रोते हैं? क्योंकि यार अटेंशन है ना, अल्टीमेटली व्यूज काउंट फॉर अटेंशन. आपके पास अटेंशन है, बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास अटेंशन है, तो उनको पैसा मिल रहा है. आप अपने पे अटेंशन लाओ ना. अगर इंसान की खुद की लाइफ पर अटेंशन नहीं है तो दुनिया क्यों उसको अटेंशन देगी? द पॉइंट एंड द कोर प्रॉब्लम ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू ग्रो एंड ही इज नॉट एबल टू ग्रो इज बिकॉज he never had an intention and awareness to know that he lacks it. अगर आप में अवेयरनेस नहीं है कभी नहीं ग्रो पाओगे. 70 साल में भी आप वो मेरी एक बहुत फेमस कोड गया था मेरा कि 17 साल पे आप 70 का एक्सपीरियंस नहीं पा सकते. यू नो, एंड सिमिलरली एट 70 ऑल्सो यू कैन बी एज किडिश एज 17-year-old. If you have never learned from life. True. Age is not the factor here. नहीं है. बिल्कुल Now, नहीं है. Once we tick all these tasks, maybe चलो आज 10 टास्क थे, 7 मैंने कंप्लीट कर लिया. Now what is the next day? ये 3 मैं कल के लिए फर्स्ट कंसिडर करूँ टू कंप्लीट दीज कि नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट टास्क. सी ऐसा हर रोज नहीं होगा कि मैंने 3 सोचे थे तीनों हो गए. नहीं हो रहे, कभी नहीं हो रहे. हाँ, तो वही तो पॉइंट है. अगर मेरे को अपने पे प्रेशर नहीं बना सी, द प्रॉब्लम विद पर्सनल डेवलपमेंट और वर्किंग ऑन योर सेल्फ और सेल्फ ग्रोथ इज दैट एवरीबडी विल टेल यू टू रिलेंटलेसली वर्क ऑन योर सेल्फ. Because you know what the problem here is, when we use these small ticks as a dopamine hit for ourselves, once we not do that, once those empty boxes are there, they are also creating the pressure कि ये इतने बाकी चीजें हैं. See, I face this. मेरे पे अब इमेजिन करो एक 29 के बंदे ने जॉब छोड़ी है. ठीक है, आई एम ट्राइंग, ओके, आई एम फोकस्ड, आई एम वर्किंग आउट, जो भी है डिसिप्लिन के अंदर हूँ. बट अगर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? मतलब ठीक है, अभी मेरे को आउटकम नहीं दिख रहा. तो पॉइंट इज यू हैव टू मास्टर पेशेंस. द सेकेंड थिंग दैट आई हैव लर्नड कि इट्स अ वेरी डार्क पिट, बिकॉज सेल्फ ग्रोथ का कोई अपर बैरियर नहीं है. मैं कितना ही अपने दिन को बेहतर बना सकता हूँ, ऑप्टिमाइज बना सकता हूँ, बट अल्टीमेटली आई शुड नॉट बिकम द स्वॉर्ड टू माई सेल्फ. मेरे को ये चीज़ भी रियलाइज करनी होगी दैट बर्नआउट इज अ वेरी रियल थिंग. सो आई वांटेड टू कम ऑन दिस इज कि जब मैं हाइपर फोकस में भी जाता हूँ, लेट्स सपोज से कोई स्टार्ट कर रहा है, उसने 20 मिनट के लिए किया, आप अपने आप को थकने से पहले ब्रेक दोगे, थकने पे ब्रेक नहीं दोगे. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आप लेट्स सपोज से कि आपको पता है कि आपकी मेंटल बैंडविड्थ 30 मिनट्स पे एग्जॉस्ट होती है, यू विल गिव योरसेल्फ द ब्रेक एट 25 मिनट्स. ओके, सो यू विल नेवर फील टायर्ड. आप अपने आप को उस तक नहीं पुश करोगे मेंटली. ओके, you get it, and that is how you learn to sustain the hyper focus for 4 hours. धीरे धीरे वो मेंटल जो आपका स्ट्रेंथ होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, वो रिड्यूस होता जाता है. बॉडी इज वेरी ऑप्टिमाइज. आपकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न करती है जैसे जैसे आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाते हो वेट लिफ्टिंग के अंदर टू मेंटेन द सेम वेट, राइट. दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बर्न लास्ट 10% ऑफ बॉडी फैट, क्योंकि बॉडी बड़ी एफिशिएंट हो गई है. अब वो फैट यूज ही नहीं कर रही है. उसको पता है कि यार इससे अभी और इतना बचा वो ले लूंगा तो फिर बचेगा क्या. दैट इज वाई यू हैव टू ट्रिक योरसेल्फ इन बिलीविंग. तो आपको रीफीड करना पड़ता है. बॉडी को लगना चाहिए कि अरे नहीं, खाना दे रहा है मुझे, है ना, इतना बचाने की जरूरत नहीं है, फैट बर्न कर सकते हैं. सिमिलरली यू हैव टू ऑल्सो फूल योर सेल्फ इन बिलीविंग कि यार अभी मुझे आउटकम नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट आई हैव कन्विक्शन इन माई वर्क दैट देयर विल बी एन आउटकम. Faith. And
faith is a very important factor. Because whenever you start a journey, there is no guarantee when it will get fulfilled. But there is a guarantee it will get fulfilled. I want to digress a little bit from here because I know this is a bit off topic that we are discussing right now. That is hyper focus and how to get time on your hand and how to control your life and control every day of your life. But how much is the factor of success determined by hope and faith, and what is the difference between hope and faith? Very interesting question. I like it. You want me to differentiate between hope and faith? Because there is a very famous movie called as Shawshank Redemption. That is one of my favorite movies. I have seen that. One of my favorites. Yeah, and there was a dialogue which was, hope is the great thing, perhaps the greatest. So he never given up. 29 years he was digging up that wall. Tunnel, yeah. Yeah. I think hope and faith are... it's the same coin. Okay. It's the same coin. Different perspective है. Hope is for... अब इसको ना target audience से समझ. Faith is a luxury to have. If you don't have it, still survive. ठीक है? Hope is a necessity to have. You see? Similarly, जो शॉशैंक वाले में अगर उसके पास hope नहीं होती, he would have never tried. He would have never tried. The initial seed is hope upon which the faith is built. Okay. So faith is something that you might not have in the beginning. Exactly. But once you have gone through that journey, just like you, you have gone through that difficult part of your life. Now you have faith कि it will work. Exactly. अब तो सोच रहा कि मैं let's say I'm a death survivor. ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास क्या था, होप ही थी कि चलो अगला दिन मैं देख पाऊंगा. ठीक है, I had my neck broken in 2018. तो मेरे पास तो सिर्फ होप थी, फेथ नहीं थी मेरे को कि मैं क्या होगा आगे, क्या होगा, मैं जो भी होगा. होप थी कि हाँ ठीक है देख लूंगा. When I quit my job, होप थी that इतना भरोसा है कि मैं फिगर आउट कर लूंगा, क्योंकि वो होप रखना मेरी नेसेसिटी थी. You see, faith मैं बोलूंगा कि आज मेरे को faith है. After working on myself for let's say accident के बाद 7 years and quitting के बाद 3 years, 7 to 10 years in this journey, आज मेरे को faith है. But उस faith को build करने के लिए, hope plus action is equal to faith. That's a very wonderful way you have put in this. It's a building block. It's a building block. Because क्या होता है ना कि जब and that is how it becomes a complete circle. क्योंकि देखो आउटकम किसी को गारंटेड नहीं होता है. मैंने ये बहुत बार बोला अपनी पब्लिक स्पीचेस में भी. We are trained to live on guarantees, but life does not come with any guarantee. तो हमें बचपन में आपको पता है कि आप 2 रुपये दोगे आपको उसके बदले टॉफी मिलेगी, आप पढ़ाई करोगे उसके बदले आपको डिग्री मिलेगी. यू आर ऑलवेज गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. सो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न. True. You get it. And then you also get disheartened when there is not something in return immediately. The point is you always get something in return, but not at the time you expect. समझ रहे हो? That's where the Bhagavad Gita has always हाँ, अगर मुझे पता ही होता आज मैं श्रीकांत के साथ बैठ के पॉडकास्ट करा रहूँगा एज अ गेस्ट, या एक TEDx स्पीकर बन जाऊँगा, या आई विल टच 20 मिलियन लाइव्स, या किसी की सुसाइड बचा दूंगा, तो मैं तो ऐसे मस्ती में छोड़ देता ना मेरी जॉब. मजा ही क्या होता लाइफ में, छोड़ देता ना. बट टू सी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कैन नॉट हैव इजी लाइफ. वन इज द कॉस्ट ऑफ द अदर. अंडरस्टैंड दिस. आप जब भगवान से मांगते हो कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाओ, तो वो डिफिकल्ट लाइफ ही देगा, क्योंकि डिफिकल्ट लाइफ ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है. And then strong character ही easy life बनाती है वापस. Exactly. And then the loop continues. But the point is, वो strong character easy life तो जरूर बनाता है. But if he can give that mindset, तो वो loop अच्छे तरीके से भी continue होता है. You see, that is the churning of life, which is, as you are saying, true. But आप किस spectrum में fall करते हो? अब मेरे लिए मेरी family के अंदर ऐसा है कि यार मेरे को पता है I am the, let's say, that black wolf. My sister, let's say, is the black wolf. वो आज एक टीवी प्रेजेंटर है, एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर है, टीवी पे आती. पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया. क्या था उसके पास? होप था. कोई ऐसा गाइडेंस नहीं थी. होप था खुद पे. इंटेंशन था. बहुत मैटर करता है.
मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, राइट? अगेन आई हैव टोल्ड दिस, मैनिफेस्टेशन इज अगेन इंटेंशन प्लस एक्शन इज मैनिफेस्टेशन. मैंने क्विट किया, मैंने लिखा खत के ऊपर कि अरे यार ऐसे 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 ये चीज़ें मुझे 1 साल में करनी है, या मैंने कर ली है, ठीक है, मैंने कर दी. मैं सपने भी नहीं सोच सकता था यार, मैं इट स्टिल गिव्स मी गूज बम्स कि मैं ऐसे स्टेजेस पे जा चुका हूँ जहाँ पे लोग आज भी मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं, उनको मैसेज आते हैं 50 साल के लोगों के, 60 साल के लोग, नहीं मुझे भी टेडेक्स पे जाना है, मुझे भी जोश टॉक पे जाना है, मुझे भी इधर जाना है, मुझे भी उधर जाना है. आई हैव अचीव्ड इट एट 30 आफ्टर क्विटिंग माई जॉब. द ओनली थिंग आई हैड वाज intention, very strong one of it, and then actions, भले वो कितने ही small क्यों ना हो, in that direction. Now direction is more important than speed. अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली आप सही जगह पे पहुंचोगे. अगर आप गलत जगह पे जा रहे हो, आप कितनी ही स्पीड में चले जाओ, पीपल फील दिस हाई ऑफ लाइफ, अरे यार क्या ग्रोथ हो रही है मेरी. बट अगर वो ग्रोथ गलत डायरेक्शन में हो रही है, then you are ultimately not reaching where you wanted to reach. अभी जब हम लोग ये चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, there was very one interesting point that came to my mind, that maybe faith is something that is earned, because that you have put in so much of work, but then people think कि I can't have faith because I have never done this, right? But then there is nothing stopping you from having the hope. It's so funny. Very interesting way I will dissect this is confidence. Basic सा एक element होता है life का, है ना? But everybody is not born exactly. with confidence. मैं वही बता रहा हूँ. तो ये लोग समझते हैं कि लोग born होते हैं confidence के साथ. Confidence is a skill that you acquire. I am an example of it. मैं बहुत introvert लग रहा था. लड़के छोड़ो, मैं लड़कों से ही बात नहीं करता था जब मैं छोटा बच्चा था. तो मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूँ श्रीकांत, वो ये कि कॉन्फिडेंस इज बिल्ड ऑन एविडेंस. ठीक है. तो और एविडेंस इज बिल्ड ऑन एक्शंस. बट हम सीख क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कॉन्फिडेंस, जबकि कॉन्फिडेंस एक आउटकम है इनका. वो पहले नहीं आ सकता हायरार्की में. वी आर फूलिश इनफ टू सीक दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टार्ट ऑफ इट. अंडरस्टूड. समझ रहे हो? इफ यू बिल्ड द एविडेंस फर्स्ट, आपको कॉन्फिडेंस आएगा. जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको फेथ आएगा. आई हैव एग्जीक्यूटेड मोर देन 100 पॉडकास्ट, सो आई हैव नाउ become confident enough to say that I can execute a podcast. And because I'm becoming confident enough, I have faith that I can become the best podcaster in this country. You see how it adds up. Yep. But हम सीख उल्टे साइड से कर रहे हैं. हम आउटकम को पहला इनपुट समझ के चल रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. You know, this is where all of the Gen Zs go wrong. मेरे को इतने सारे लोग आते हैं यार यूथ में कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. कैसे होगा? You haven't executed anything. तुम फेल भी नहीं हो. सक्सेस तो छोड़ो, फेल भी नहीं हुए हो. एंड फेलियर इज अ पाथ टू सक्सेस, नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस. दैट इज व्हाट एवरी यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड. फेल फास्ट एंड फेल फास्टर देन एवरीवन एल्स अराउंड यू. बिकॉज जब तक वो ये डिसाइड कर रहे हैं ना ओवर थिंकिंग में कि यार मैं ए करूँ या बी करूँ, तुमने ए बी दोनों कर लिया, तुम्हें पता है कि दोनों ही गलत थे. बट फेल्योर को सोसाइटी ने इतना बुरा कर दिया है कि फेल्योर मतलब इट फील्स लाइक समथिंग वी हैव लॉस्ट आवर आर्म, है ना? बट दैट कम्स आउट ऑन ओनली ऑन वैलिडेशन. फेलियर को आप वैलिडेट किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो? अगर श्रीकांत मेरे को बोलता है नीरज यू आर अ फेलियर, तो मैं अपने आप को फेलियर मान रहा हूँ. इफ माई डेफिनेशन ऑफ फेलियर इज डिपेंडेंट अपॉन योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर, तो वो तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से ही नहीं जी रहा ना. तो फेलियर सिर्फ मैं डिफाइन कर सकता हूँ मेरे लिए, कोई नहीं कर सकता. और दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू लर्न. मेरा फेलियर मेरी राइट है भाई. मेरा अपना सेट ऑफ रूल होगा जो डिसाइड करेगा कि मेरे लिए फेलियर क्या है. मेरे लिए फेलियर हो सकता है, एक खुशी की बात भी हो सकती है कि यार आई डिड सच एन अमेजिंग पॉडकास्ट, बट यार आई फेल टू आस्क दिस क्वेश्चन, आई फेल टू यूज दिस मोमेंट, बट दैट्स अ गुड फेलियर फॉर मी. आई एग्जीक्यूटेड रियली वेल, बट नाउ दैट फेलियर इज टीचिंग मी कि तेरी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या थी इसमें. You see, now I am defining that failure, which is positively triggering me कि तेरे में और growth का potential है. It is not a negative connotation to me. Right. Because मैं define कर रहा हूँ. मेरी एक I'll tell, मैंने किसी podcast पे ये बोला नहीं है. एक time था youth पे सबसे ज़्यादा influence उनके parents का होता है. One of my first reels that went viral was one of the person who asked me कि आप parents के लिए कुछ बनाओ. ठीक है, और वो मेरी रील सबसे पहले वायरल जाती है बिकॉज मैंने उसमें ये कहा था
कि हर फूल को खिलने में अलग टाइम लगता है. अगर आप नहीं समझ सकते तो समय दे दो. इफ यू कांट अंडरस्टैंड एनीबडी, उसको टाइम दो उतना. You get it? And there was a point of time in my life, in this whole journey, मैंने जब स्टार्ट किया था इसको ड्रीम विद नीरज को 14th August 2023, मैंने जोश टॉक तक जाने तक मैंने किसी फैमिली मेम्बर को नहीं पता था नीरज क्या कर रहा है. 1.5 साल तक नीरज सिर्फ एक घोस्ट था जो सिर्फ अपने आप पे काम कर रहा था. You have to isolate yourself in those situations. नहीं तो फिर I didn't society care. is always I putting didn't care. things in Yes. your mind. Currently, आज मैं बोल सकता हूँ कि I don't care. उस टाइम पे I did. And that is why I did not want me to be distracted by कि सामने वाला क्या बोल रहा है. वो बोल रहा है अरे नीरज पागल है क्या, 29 पे क्या कर रहा है. आज वही बंदा बोल रहा है नीरज मेरे को भी करके दिखा. See, you are crazy and then you are just a genius. मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये था कि your parents will judge you, everybody will judge you, but if you can define your own failure, if you stop seeking any validation and start giving yourself a validation to the part you are walking towards, reflecting on it, then you will be able to keep going. Because एक लाइन जो मेरे को हिट की थी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट सेड ऑन एनी पॉडकास्ट, इज एक टाइम तो मेरे घर पे मेरे भैया आए थे एंड माई मॉम वॉज सिटिंग एंड मैंने आई वॉज अर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई हैड फॉलोअर्स, आई हैड लाइक जैसे बोलते हैं ना जेनजी के टाइम पे सक्सेस वो आ चुकी थी. ठीक है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो टू जोश टॉक एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं तब बताऊँगा. somebody comes on my home and then he asked me आजकल कर क्या रहा है. हर एक का यही क्वेश्चन होता है ना, आजकल कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है. लड़कों से और भी ज़्यादा कर क्या रहा है. माई मॉम रिप्लाइड ऑन माई बिहाफ कि अरे ये क्या बताएगा, ये कुछ करता ही नहीं है. एंड दैट हिट मी वेरी हार्ड. दैट टॉट मी ऑल्सो पेशेंस. आई डिड नॉट रिप्लाई ऑन दैट डे. How could you? एंड देन माई मॉम ऑब्वियसली जब जोश टॉक वगैरह होता है अब ऐसा अब नाउ मेरी टीम की मम्मी ने उनको फ़ोन करके बताया कि आपके बेटे की वजह से यू नो हमारी लाइफ बदल गई. चाहे किसी को एम्प्लॉय किया हो, उनके घर पे कुछ हेल्प की हो, लाइफ को इम्पैक्ट किया हो, किसी का सुसाइड बचाया हो, कुछ हुआ. मेरे को सी हाउ द वर्ल्ड प्लेज विद यू. उस टाइम पे मैंने रिप्लाई नहीं किया था कि यू नो आई विल let my actions do the talking. Although I had something to brag about at that point of time. These things happened. फिर जब उनका फ़ोन आता है, बहुत ऐसे फ़ोन आए हैं कि ठीक है to boost me कि because of you this happened. Because of my actions, let's say. मैंने वो फ़ोन मेरी मम्मी को दिया. मैंने मेरी फ़ोन और मैंने आंटी को ये बोला कि देखो आप मेरे को मत बताओ, मेरी जीत नहीं है, माँ की जीत है मेरे. तो वो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना, वो जो मैं अंदर लेके चल रहा था, दैट वाज माय सैक्रिफाइस. नाउ द पॉइंट इज आप एक चिंदी सा सैक्रिफाइस यूज कर सकते हो. यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस. नाउ दैट कीप्स यू मोटिवेटेड. You know what I loved about this conversation is we started with the clarity, how to start our day, how to take control of our time, how to go hyper focus, how to break our goals into smaller parts and feel that hit of dopamine and all those things. But the necessary building block of that is always the psychology and the hope and the faith part, and then eventually we came to the confidence part and how it is not somebody is born with, how Correct. it is something that It's a you skill. take actions and you build it. Neeraj, thank you so much, and I really want to take this conversation into multiple parts of series, and I already have few questions about how I want to structure this. One of them is how to become selfish for your own growth. Here what I felt is if I do take these actions every day, every single day, I'm going to feel like I'm going to isolate myself for some time, and everybody now most of my friends are going to call and भाई ये तो अपने में रहता है अभी. Now he is not going to come with us because I have to sacrifice. I have sacrificed that part of my life. Correct.
now somewhat they try to make you feel guilty that you're sacrificing these things. You're sacrificing them for your own life to build something for yourself. I want to talk on the selfishness for your own success in the next episode. Now, if you want to take this and to summarize this, I would love you to do that. Firstly, thank you for believing in me so much that you want to do multiple parts with me. That means a lot to me, and you allow me a space where I can also open up. And I think this series is gonna be a golden playlist for a lot of people. That is what my intention is, in terms of whatever I have learned. That is the reason I wrote my book Dream with Neeraj, which is available, which is with you as well. In terms of selfish, I would love to close this podcast with the food for thought for the next series that we shoot together. If you feel like lost, if you feel like an alien in a group of people that have been your best friends, just remember this one line, that you are not the version they were grown up with. You are becoming something better. They loved the version of you which you don't accept right now. So just remember, maybe they just loved what you bought them, not who you are, or not your growth. So that's how I would love to end it. Thank you so much, and Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev.